Hello students, how are you? It's our third lecture of general principles and process of isolations of element, right? In first lecture, we discuss about the introduction of this isolation of element, right? Where we need this isolation, importance of isolations of metal, right? And learn about some terms. In second lecture, we discuss about the concentration of ore, right? For the extraction of metal, we having a three-step: concentration of ore, extraction of free metal, and second one is refining of ore, right? We already discussed about the concentration of ore in the previous lecture. Today we are going to discuss about the extraction of free metals, all right? Extraction of crude metal from concentration ore, right? We already form a concentrate ore by the fourth different metal depending upon the impurities type and the types of ore present, right? There are hydraulic washing, then we discuss about the magnetic separation, then froth flotation, and last leaching process, right? By this four method we concentrate ore. Now that concentrate ore, from this concentrate ore we have to form a metal oxide, right? Means to gain crude metal, the first step is conversion of this concentrate ore into the metal oxide, right? In the first step we have to form metal oxide, and then reduction of metal oxide to free metals, right? First of all, we have to concentrate ore. We discussed about that concentration of ore in the previous lecture, right? Then the concentrate ore is converted into metal oxide, right? And then metal oxide is reduced to free metal, right? Means extraction of crude metal is divided into two parts. First one is formation of metal oxide, and second one is a reduction of that metal oxide to free metal, right? The conversion of metal oxide is carried out in two ways, right? Two different ways. First one is calcination and second one is roasting, right? And the reduction of metal oxide is carried out by four different ways. First one is reduction by the carbon. It is also known as smelting. Second one is a reduction by more reactive metals, right? Third one is self reduction, and fourth one is electrolytic reduction. So today we are going to discuss about the calcination, roasting, smelting, reduction by metals, self reduction, and electrolytic reduction. Let's start with the calcination. Conversion of metal into a metal oxide, right? First step is conversion of metal into metal oxide. For that, first step is calcination. The process of converting concentrate ore into oxide by heating it strongly below its melting point in the absence of air is called calcination, राइट कैल्सिनेशन में क्या कहना है, तो हमें उसका जो कॉन्सेंट्रेट और हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्म की थी उसे हमें हीट करना है, लेकिन कहाँ तक उसका मेल्टिंग पॉइंट जो भी मेटल की ओर है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाए उससे पहले तक हमें क्या करना है, उससे हीट करना है. उससे ज़्यादा हीट नहीं करना है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा हीट करेंगे तो फिर वो डिकम्पोज भी हो सकता है. तो उससे लो टेम्परेचर पे उससे हमें क्या करना है, हीट करना है इन द एब्सेंस ऑफ एयर. अगर एयर की एब्सेंस में उसे उसके मेल्टिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर तक हम हीट करेंगे तो उस प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट ओर को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्साइड में, राइट? और इसी प्रोसेस को इट इज़ नोन एज अ कैल्सिनेशन, right? In this process we can remove volatile impurities like carbon dioxide and sulfur dioxide, right? Calcination के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन
सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जो वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ है उसे हम रिमूव कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक मेटल होते हैं या मॉइस्चर होते हैं उसे भी हम रिमूव कर सकते हैं बाय द कैल्सिनेशन, राइट। एंड ड्यूरिंग कैल्सिनेशन और बिकम्स पोरस, राइट, क्योंकि उसमें सब मॉइस्चर और सब क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो वो क्या फॉर्म, वो कैसे फॉर्म में आ जाएगी, पोरस फॉर्म में। और some of the ore decomposes during the calcination, right. Let's see the example of calcination. It is commonly used for the carbonates and hydroxide. हमने बोला कि जो हमारी कॉन्सेंट्रेट ओर है उसमें से हमें क्या फॉर्म करना है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करना है। लेकिन जो वो ओर है वो ओर कार्बोनेट ओर हो या फिर हाइड्रोक्साइड ओर हो, तभी हम ये प्रोसेस कैल्सिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। सही है। The examples of calcinations are here. If we heat the calamine means ZnCO3, then it will be a convert into ZnO plus CO2. Means calamine zinc carbonate is converting into a zinc oxide, राइट। मीन्स हमें फर्स्ट स्टेप में यही तो करना था कि जो भी हमारी कॉन्सेंट्रेट और है उसमें से हमें मेटल ऑक्साइड फॉर्म करना था। तो अगर हमने जिंक कार्बोनेट को उसके मेल्टिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर पे हीट किया तो वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल रिमूव करके जिंक ऑक्साइड फॉर्म कर देगा। सही है। ऐसे ही मेलेचाइट CuCO3 into CuOH twice कन्वर्ट इंटू कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस वाटर। सही है। अगर हम मेलेकाइट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उसमें से भी क्या फॉर्म हो रहा है, तो हमारा कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। हमारा फर्स्ट स्टेप यही था कि हमें ऑक्साइड फॉर्म करना है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करना है। तो जब भी हम ओर्स, वो भी कौन सी ओर, कार्बोनेट कंटेनिंग और हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग ओर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उसमें से आप यहाँ पे देख सकते हो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहे हैं और साथ में क्या फॉर्म हो रहा है, हमारा मेटल ऑक्साइड। सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डोलोमाइट CaCO3 इंटू MgCO3 को अगर हम हीट करते हैं तो उसमें से कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होते हैं और साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बोनेट है, उसकी इम्प्योरिटीज़ एज अ कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिमूव हो रही है। सही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है देन वी कैन यूज़ द कैल्सिनेशन प्रोसेस, राइट। एंड इफ़ वी heat the oxide, it will converted into aluminum oxide and remove the two water molecule, right. This is our calcination process. By this process we can convert carbonate or hydroxide concentrate ore into its metal oxide, right. The second one is roasting. By roasting we also can convert concentrate ore into a metal oxide, right. In this process, the concentrate ore, usually sulfide ore, right? In calcination, we are using carbonate and hydroxide ore. In roasting, we will use the sulfide ores, right? Means whenever the sulfide ore is heated strongly in the presence of excess of air below its melting point, so that sulfide ore is converted into oxide, right? You can compare the calcination and roasting. Calcination is used for the carbonates and hydroxide ore, while roasting is used for the sulfide ore, right. The calcination is carried out in the absence of air and roasting is carried out in the presence of air, right. दोनों में हमें मेल्टिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर तक ही हीट करना है, लेकिन कैल्सिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर होती है और रोस्टिंग कैरिड आउट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। सही है। इट इज़ डन इन अ रिवर्बरेटरी फर्नेस, राइट। द एग्जाम्पल ऑफ, अगर हमने गैलेना ले लिया विच इज़ द ओर ऑफ लेड सल्फाइड, राइट, ओर ऑफ लेड, तो गैलेना जो हमारा PbS है उसे अगर हमने इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हीट किया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटू लेड ऑक्साइड एंड इट विल रिमूव द मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। सेम zinc, if we heat the zinc blend ZnS in the presence of air, it will convert it into a zinc oxide, right. Means by roasting we can convert sulfide ore into metal oxide. It's our reverberatory furnace, right, in which
ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, क्या करते हैं हम यहाँ से, तो यहाँ से अगर हमने ये डाल दिया हमारी मेटल, ये हमारी मेटल है, यहाँ से हम हीट उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम उसे बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो क्या करेगा, जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन दिख रहा है आपको, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्राउन वाला पोर्शन, वो क्या है, हमारा स्लैग फॉर्म होता है। हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द स्लैग, राइट, कि व्हेन वी ऐड अ फ्लक्स in the ore, then flux will combined with the gangue particle and form a slag, राइट। तो ऐसे स्लैग के फॉर्म में इम्प्योरिटीज़ क्या होती है, रिमूव हो जाती है, और वो जो फ्लक्स है वो क्या करता है, तो इनसॉल्यूबल कंपाउंड फॉर्म करता है स्लैग गैंग के साथ फॉर्म होके, सही है। तो ये जो इनसॉल्यूबल कंपाउंड होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और वो कैसा होता है, लाइट वेट कंपाउंड होता है। स्लैग क्या होता है, तो लाइट वेट कंपाउंड होता है। तो क्या हो जाएगा, तो वो जो हमारी मेटल है उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म कर देगा, और उसे हम बाय टेप रिमूव कर सकते हैं। और जो नीचे का पोर्शन आप देख रहे हैं वो क्या है, हमारी मेटल है, सही है। और फिर उसे हम कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि ऐसा हमारा फर्नेस स्ट्रक्चर है। उसके अंदर हमने क्या लिए, कॉन्सेंट्रेट ओर ले ली, उसमें से स्लैग रिमूव हो गया, उससे हमने सेपरेट कर लिया। फिर ये जो हमारी मेटल थी, कॉन्सेंट्रेट मेटल, उसमें से कन्वर्ट हो गया ऑक्साइड। आई बात समझ में। तो हमने जो बात की कि हमें क्या करना है, तो जो कॉन्सेंट्रेट ओर है उसमें से हमें फ्री और क्रूड मेटल फॉर्म करनी है। उसके लिए 2 स्टेप थे। पहला था उस कॉन्सेंट्रेट ओर में से उसे कन्वर्ट करना था हमें मेटल ऑक्साइड में। तो वो 2 तरह से हो सकता था। एक तो है हमारा हो गया कैल्सिनेशन, और दूसरा था हमारा रोस्टिंग। अब वो जो हमारा मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो गया उसका हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है। और बाय द रिडक्शन वी हैव टू कन्वर्ट दैट मेटल ऑक्साइड इनटू अ फ्री मेटल, राइट। तो उसकी जो प्रोसेस जो स्टेप है, डिफरेंट डिफरेंट वे से हम जो ये रिडक्शन कैरिड आउट करते हैं वो हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो पहला हो गया हमारा रिडक्शन बाय कार्बन, सही है, और उसी को बोलते हैं हम स्मेल्टिंग। वो कैसे होता है, the process of extraction of a metal by reducing its oxide with carbon। कार्बन कैसे कैसे फॉर्म में हो सकता है, तो कोल, कोक, चारकोल, सही है। ऐसे फॉर्म में हम कार्बन को यूज़ करते हैं, और क्या करते हैं, जो हमारी मेटल ऑक्साइड था उसमें से मेटल को रिड्यूस करके हम मेटल फॉर्म करते हैं, और उसी प्रोसीजर को बोलते हैं स्मेल्टिंग, सही है। द एग्जाम्पल ऑफ स्मेल्टिंग इस, अगर हमने जिंक ऑक्साइड ले लिया, जैसे कि हमने जिंक सल्फाइड में से भी जिंक ऑक्साइड फॉर्म कर सकते हैं, और हमने कैल्सिनेशन में देखा कि जिंक कार्बोनेट में से भी हमने जिंक ऑक्साइड फॉर्म कर दिया। तो वो जो जिंक ऑक्साइड है अगर उसे हम कार्बन के साथ हीट करते हैं तो क्या होगा, कार्बन के साथ हीट करने पर वो जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, सही है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ZnO है उसमें जो Zn का ऑक्सीडेशन नंबर है क्या है, +2 होता है, वो कन्वर्ट हो रहा है Zn में, मतलब यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं रिडक्शन हो रहा है। और ये रिडक्शन हम बाय द कार्बन करवा रहे हैं, और उसे बोलते हैं हम स्मेल्टिंग, सही है। तो व्हेनेवर वी हीट द मेटल ऑक्साइड विद द कार्बन, it will converted or reduce that metal oxide and converted into metal and remove the carbon monoxide, right. The another example of that is ferric oxide plus carbon, it will gives iron plus carbon monoxide, सही है। मीन्स अगर हमने मेटल ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करवा दिया, उसके साथ हीट किया, तो वो क्या करेगा, जो हमारे मेटल है वो देगा और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। अब देखो क्या होता है, तो जो ये रिलीज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड ऑल्सो ब्रिंग्स द रिडक्शन, सही है। एक तो क्या किया, हमने कार्बन लिया, उसने मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कर दिया, मेटल दे दिया, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर दिया। यही कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से हमारा जो अदर मेटल ऑक्साइड है उससे रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। आप देख सकते हो कि जो हमने आयरन ऑक्साइड लिया था, सही है, उसको फिर से किसने, तो जो ये
कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, सही है। ये पहली रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो फेरिक ऑक्साइड है वो कार्बन के साथ रिएक्ट हो गए आयरन फॉर्म कर रहा है, और साथ में क्या फॉर्म हो रहा है, तो ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से दूसरे जो फेरिक ऑक्साइड है उसको रिड्यूस करके फिर से आयरन फॉर्म कर देगा, और साथ में क्या फॉर्म रिलीज कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स के यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो भी रिड्यूस हमारी जो मेटल है उसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ओके, एक दूसरा एग्जांपल यही कि जो यहाँ पे Zn जिंक ऑक्साइड था, वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहा था, जिंक फॉर्म कर रहा था, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रहा था, लिबरेट हो रहा था। वही जो कार्बन मोनोऑक्साइड है दूसरे जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके उसे भी रिड्यूस कर देता है, सही है। तो ये प्रोसीजर हो गई हमारी स्मेल्टिंग प्रोसीजर, सही है। तो स्मेल्टिंग is carried out in the blast furnace at the high temperature so that metal is produced in a liquid state. During smelting जो metal फॉर्म होती है वो कैसे फॉर्म में होती है, मेल्टिंग स्टेट में। समटाइम्स इतनी ज़्यादा हीट होने की वजह से जो हमारी मेटल है वो वेपर स्टेट में भी चली जाती है, जैसे कि जिंक हमें वेपर स्टेट में मिलेगी अगर हमें स्मेल्टिंग के थ्रू उसका रिडक्शन करवाया। तो ये हमारा है ब्लास्ट फर्नेस, उसमें आप देख सकते हो कि क्या करते हैं, ऊपर से हम मेटल ऑक्साइड को ऐड करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, तो कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग होता है, और या फिर होता है साथ में यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड फिलअप किया गया होता है। फिर जब वो नीचे जाता है तो क्या होता है, आप देख सकते हो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि जो हमारी मेटल है वो किस फॉर्म में चली जाती है, मोल्टन स्टेट में। साथ में क्या होता है, तो हमारे पास तो क्या थी, मेटल, और साथ में गैंग पार्टिकल भी तो होते हैं। तो वो जो गैंग पार्टिकल है, सही है, वो क्या करते हैं, फ्लक्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं और क्या फॉर्म करते रहते हैं, तो ये स्लैग फॉर्म करते रहते हैं। मीन्स के यही साथ में क्या हो जाता है, फ्लक्स के साथ कंबाइन होकर स्लैग फॉर्म करता है। स्लैग कैसा होता है, लाइट वेट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि नीचे का जो ये थोड़ा सा पिंक वाला पोर्शन है वो क्या है, हमारी मोल्टन मेटल है जो यहाँ नीचे से निकल जाएगी, सही है। यहाँ पे एक होल है, उसमें से ये आयरन निकल रहा है, और ऊपर का जो ये लेयर है वो क्या है, हमारा स्लैग है, वो दूसरे वाले टैप से निकल जाएगा। मतलब मैं ऐसे उसमें से इम्प्योरिटी को भी रिमूव कर सकते हो, और साथ में जो उसके कार्बोनेट या सल्फाइड में से कन्वर्ट किया गया हमारा मेटल ऑक्साइड है उसमें से भी हम मेटल फ्री मेटल फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो फ्री मेटल मिल जाएगी। अभी इस प्रोसेस से हमें सिर्फ फ्री मेटल मिल रही है, वो प्योर फॉर्म में अभी तक नहीं है, उसे हमें प्योर फॉर्म में फिर लाना है। लेकिन इससे क्या होता है, जो हमारा ओर था उसमें सिर्फ फ्री मेटल मिल गई। पहले हमने कॉन्सेंट्रेट ओर में क्या किया, तो कॉन्सेंट्रेट ओर में हमने पहले किया कि जो मेटल थी उसकी जो सैंडली इम्प्योरिटीज़ थी उसे क्या किया, हमें गैंग को रिमूव करके उसको कॉन्सेंट्रेट किया। अब दूसरे स्टेप में क्या कर रहे हैं, जो कॉन्सेंट्रेट और है उसमें से हम क्या कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं कि उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, और फिर ऑक्साइड में से फ्री मेटल फॉर्म कर रहे हैं, सही है। तो हमें यहाँ तक फ्री मेटल मिलती है दूसरे स्टेप में, कि जो कौन सी है, क्रूड मेटल है। अभी उसमें कोई और भी इम्प्योरिटीज़ है, उसे प्योर फॉर्म में लाना है, उसके लिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो प्योर कैसे होती है। तो ये फर्स्ट प्रोसेस था कि जिसके थ्रू हम मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस कर सकते हैं बाय द स्मेल्टिंग, सही है। दूसरा है हमारा रिडक्शन, ये जो ब्लास्ट फर्नेस होता है, रिडक्शन बाय डिफरेंट वे में देखने से पहले हम ये देख लेते हैं, जो हमने ये ब्लास्ट फर्नेस देखा है उसकी जो वॉल होती है जो वो किस मटेरियल से फॉर्म की जाती है, और उस मटेरियल को बोलते हैं रिफैक्टरी मटेरियल, सही है। द सब्सटेंस विच वेरी हाई टेम्परेचर विदाउट मेल्टिंग और बिकमिंग सॉफ्ट, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्लास्ट फर्नेस है हमारी उसमें टेम्परेचर कितना ज़्यादा है,
सही है। तो उस टेम्परेचर तक ये जो वॉल है हमारी, सही है, ये जो हमारी वॉल है वो क्या करनी चाहिए, उस टेम्परेचर को सह भी तो पानी चाहिए और मेल्ट नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम ये टेम्परेचर, इतना ज़्यादा टेम्परेचर कैसे गेन कर सकते हैं, सही है। तो ये जो हमारा फर्नेस है उसकी वॉल बहुत ज़्यादा ऐसे मटेरियल से बननी चाहिए कि जो हाई टेम्परेचर पे भी ना मेल्ट हो ना सॉफ्ट हो, सही है। फिर आगे, हैंस द फर्नेस इज लाइंड विद द रिफैक्टरी मटेरियल, उसी जो मटेरियल को बोलते हैं हम रिफैक्टरी मटेरियल, सही है। इफ़ द इम्प्योरिटीज, हाँ पहली बात तो कि ये क्या होनी नहीं चाहिए, मेल्ट नहीं होनी चाहिए हायर टेम्परेचर पे। दूसरी बात कि उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, तो हम केमिकल्स और फिलअप कर रहे हैं, मतलब केमिकल्स हुए, तो हमारा जो मटेरियल है वो फर्नेस का ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी और है, हमारी इम्प्योरिटीज़ है उसके साथ रिएक्ट भी ना करे, सही है। उसी वजह से जो हमारी इम्प्योरिटी यो और है उसका जिस टाइप का नेचर होता है उसी के अकॉर्डिंग फर्नेस यूज़ की जाती है। इफ़ द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन और प्रोडक्ट obtained from this is acidic, then acidic refractories are used। क्या बोला हमने कि अगर यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं इम्प्योरिटी, उस ओर में जो इम्प्योरिटी है या जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है वो कैसी हो, एसिडिक, तो जो हमारी रिफैक्टरी मटेरियल है वो भी कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। उसके एग्जांपल है हम सिलिका, क्वार्ट्ज, सैंडस्टोन, ऐसे हम मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं एज अ एसिडिक रिफैक्टरी, जबकि हमारा जो और है उसका मीडियम भी कौन सा हो, उसका एनवायरनमेंट भी हो एसिडिक, सही है। इफ़ देयर इज़ अ बेसिक एनवायरनमेंट देन बेसिक रिफैक्टरी विल बी यूज लाइक लाइम, डोलेमाइन, मैग्नेसाइट विल बी यूज्ड, सही है। इफ़ न्यूट्रल रिफैक्टरीज, मतलब न्यूट्रल एनवायरनमेंट होगा तो न्यूट्रल रिफैक्टरीज मटेरियल यूज़ करेंगे, वो कौन सा हो जाएगा, ग्रेफाइट, क्रोमाइट, बोन एस, राइट। तो ये सारे हमारे डिफरेंट टाइप के रिफैक्टरी मटेरियल हो गए जिसे हम यूज़ कर सकते हैं फॉर इन द फर्नेस, जो हाई टेम्परेचर पे भी नहीं मेल्ट होगा, नहीं सॉफ्ट होगा, और जो हमारी ओर के साथ रिएक्ट ना करे, सही है। और अगर सेमी न्यूट्रल एनवायरनमेंट हो तो उसके लिए हम रिफैक्टरी मटेरियल के तौर पे यूज़ करेंगे फायर क्ले को, ओके। तो ये हो गया हमारा रिफैक्टरी मटेरियल। अब हम बात करते हैं रिडक्शन बाय रिएक्टिव मेटल्स, जो हमने बात की कि दूसरे मेटल के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, तो उसे रिड्यूस कर सकते हैं। पहले तो हम रिडक्शन कैरिड आउट कर सकते हैं बाय द ट्रीटिंग दिस मेटल ऑक्साइड विद द कार्बन, और उसी को बोलते हैं स्मेल्टिंग प्रोसेस। तो दूसरा हो गया हमारा रिडक्शन बाय अदर मेटल्स। उस अदर मेटल्स में अगर हम एल्यूमिनियम से उसे रिड्यूस करें तो उसे बोल सकते हैं हम एल्यूमिनोथर्मी और गोल्डस्मिथ थर्मिट प्रोसेस है। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी भी किया था, गोल्डस्मिथ थर्मिट प्रोसेस, सही है। तो उसको हम स्टडी करेंगे। उसमें क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग सर्टेन मेटल ऑक्साइड विच कैन नॉट बी रिड्यूस बाय कार्बन। जो कार्बन के थ्रू रिड्यूस नहीं होते हैं मेटल ऑक्साइड, उसे रिड्यूस करने के लिए हम ये प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टिन डाइऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, उन सब को हम क्या कर सकते हैं, बाय द एल्यूमिनोथर्मी प्रोसेस उसे रिड्यूस कर सकते हैं, सही है। उसमें हम क्या करते हैं, तो जो हमारी मेटल है उसका ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम पाउडर हम ले लेते हैं, सही है। और उसी दोनों की रिएक्शन करवाने की वजह से क्या होता है, तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है हमारा, वो इन सारी मेटल से क्या होगा, रिएक्टिव होगा, तो वो उसे डिस्प्लेस कर देगा, सही है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और हमारा जो मेटल है वो यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब कि अगर हमने क्रोमियम ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवा दी तो एल्यूमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव देन क्रोमियम, तो क्या करेगा, एल्यूमिनियम रिएक्शन मिक्सचर में से ये क्रोमियम को डिस्प्लेस कर देगा और क्रोमियम हमें मिल जाएगा एज अ फ्री मेटल और फॉर्म हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन बहुत ज़्यादा हीट क्या होती है,
इवॉल्व होती है। सही है। मैंगनीज ऑक्साइड का भी हम अगर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो मैंगनीज फ्री मेटल देगा और साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म कर देगा। और ड्यूरिंग रिएक्शन क्या हो रही है, तो हीट फॉर्म हो रही है। उसी हीट की वजह से हम उसका दूसरा यूज़ भी कर सकते हैं। क्या, तो उससे बोलेंगे हम in this process a large amount of heat is evolved so that metal is obtained in a liquid state। सही है। और लिक्विड स्टेट में मेटल मिलती है, उस वजह से हम क्या कर सकते हैं, तो मोल्टन आयरन प्रोड्यूस ड्यूरिंग थर्मिट प्रोसेस। अगर हमने आयरन ऑक्साइड ले लिया, सही हो, और उसके एल्यूमिनियम के साथ हमने क्या करवा दी, रिएक्शन करवा दी, तो जो आयरन मिलेगा वो क्या होगा, मोल्टन स्टेट में होगा। क्योंकि जैसे कि हमने देखा ड्यूरिंग रिएक्शन बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व हो रही थी, तो उस हीट की वजह से जो हमें मेटल मिल रही है वो कौन से फॉर्म में मिलेगी, मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगी। सही है। तो ये जो मेटल ऑक्साइड था हमारा, वो क्या अगर उस मेटल ऑक्साइड में हमने ले लिया आयरन ऑक्साइड, तो वो क्या फॉर्म करेगा, मोल्टन स्टेट में आयरन फॉर्म करेगा। और उसी मोल्टन आयरन का हम यूज़ कर सकते हैं जो आयरन के ब्रोकन पार्ट्स हो उसे वेल्ड करने के लिए। जैसे कि रेलवे ट्रैक में आपने देखा होगा कि अगर वहाँ पे जो रेलवे ट्रैक है वो किसका बना होता है, आयरन का बना होता है। अगर उसमें थोड़ी सी गैप आ गई या कुछ हुआ तो हम उसके लिए क्या करते हैं, तो ये थर्मिट प्रोसेस यूज़ करते हैं कि जिसमें हम ले लेते हैं फेरिक ऑक्साइड और उसके अंदर ऐड कर देते हैं एल्यूमिनियम पाउडर। सही है। जब वो एल्यूमिनियम पाउडर फेरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, मोल्टन आयरन फॉर्म करेगा और उसी मोल्टन आयरन के थ्रू फिर उस हम गैप को फिल कर सकते हैं। सही है। तो उसे हम बोल सकते हैं थर्मिट वेल्डिंग भी बोल सकते हैं। इन द थर्मिट वेल्डिंग द रेशियो ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड द एल्यूमिनियम पाउडर इज 3:1। सही, राइट। और हमें आयरन ऑक्साइड 3 के अमाउंट में लेना है और एल्यूमिनियम पाउडर 1 के अमाउंट में, और उसके थ्रू साथ में हमें स्टार्टिंग में ऐड करना होता है मैग्नीशियम पाउडर एंड बेरियम ऑक्साइड, ताकि वो क्या होगा, रिएक्शन को स्टार्ट करके देगा। उसी वजह से उसे बोलते हैं इग्निशन पाउडर, कि वो इग्निशन की जैसे हमारी रिएक्शन को स्टार्ट करके देगा। कौन सा, तो मैग्नीशियम पाउडर और ये जो बेरियम ऑक्साइड था वो। और उसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे आयरन के बने हुए जो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें अगर वो ब्रोकन हो गए हैं, उसमें गैप आ गई है, तो उसे हम फिल कर सकते हैं बाय दिस थर्मिट प्रोसेस। सही है। तो ऐसे हम बाय दिस थर्मिट प्रोसेस क्या कर सकते हैं, हमारे मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अदर मेटल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम। जैसे हमने एल्यूमिनियम का यूज़ करके मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट किया, वैसे ही हम सोडियम और मैग्नीशियम का यूज़ करके भी मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सही है। हो गया बोरॉन ऑक्साइड, उसके मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करने पे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल में। अगर टिटेनियम ऑक्साइड ले ली और हमने उसकी सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई तो वो फॉर्म कर देगा टिटेनियम मेटल प्लस सोडियम ऑक्साइड। सही है। अगर हम मेटल ऑक्साइड की जगह मेटल हैलाइड भी ले तो भी ये मेटल्स उसको रिड्यूस करके मेटल में फॉर्म कर देगी, मेटल हैलाइड को रिड्यूस करके मेटल में फॉर्म कर देगी, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रोल्स प्रोसेस। सही है। टिटेनियम क्लोराइड प्लस 2 magnesium, it gives titanium plus magnesium chloride. Same if we take vanadium chloride and react with the magnesium or sodium, it will be a form, it will give वेनेडियम मेटल प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ऐसे हमने फर्स्ट देखा स्मेल्टिंग, जिसमें हम कार्बन के थ्रू रिडक्शन करवाते हैं। दूसरा हो गया अगर हम कोई ज़्यादा रिएक्टिव मेटल के थ्रू भी रिडक्शन करवा सकते हैं बाय द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे यही हो रहा है कि जो हमारी मोर रिएक्टिव मेटल है वो हमारी जो ऑक्साइड ओर है उसमें से मेटल को, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके फ्री मेटल में कन्वर्ट कर रही है। सही है। अब तीसरी प्रोसेस है हमारी सेल्फ रिडक्शन। सही है। सेल्फ रिडक्शन में क्या होगा, तो व्हेन सल्फाइड ओर्स और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स like mercury, copper, lead, antimony, etc. are
heated in air, a part of the ore get oxidized to oxide or sulfate, which then react with the remaining sulfide ore to give the metal and SO2. This process is known as a self reduction. क्या होता है सेल्फ रिडक्शन में? तो अगर हम सल्फाइड ओर ले लें, तो जैसे कि हमने आगे भी देखा रोस्टिंग में कि अगर सल्फाइड ओर है तो वो क्या करेगी, हमारा मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगी और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करेगी। तो कभी कभी अगर वो सल्फाइड और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की है तो क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप में जो हमारी मेटल है वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगी, जो मेटल सल्फाइड होगा वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, लेकिन वही मेटल ऑक्साइड अगेन उस मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके मेटल फॉर्म कर देगा। आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। सही है, मतलब वहाँ पे हम कोई एक्स्ट्रा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ नहीं कर रहे थे, जैसे कि स्मेल्टिंग में हमने कार्बन यूज़ किया या कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ किया, और जो रिएक्टिव मेटल के थ्रू था वहाँ भी हमने कोई रिएक्टिव मेटल यूज़ की। यहाँ पे हमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करनी है, वो हमारी और खुद ब खुद को रिड्यूस करेगी। सही है, उसी वजह से उसे बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। सही है, अगर आप एग्जाम्पल देखो तो ये हमने ले लिया मर्क्यूरी सल्फाइड। सही है, उसको क्या करेंगे तो रोस्टिंग में जैसे हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, सही है, हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटल ऑक्साइड। तो जो मर्क्यूरी सल्फाइड है वो कन्वर्ट हो गया हमारा मर्क्यूरी ऑक्साइड में। सही है, अब क्या होगा, तो जो मर्क्यूरी ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है वही मर्क्यूरी ऑक्साइड फिर से जो रिएक्शन मिक्सचर में हमारा मर्क्यूरी सल्फाइड है उसके साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्म कर देगा मर्क्यूरी और इवॉल्व हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। आई बात समझ में? यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, पहले हमारा ये सल्फाइड फॉर्म कर रहा है ऑक्साइड, उसी ऑक्साइड की अगर हमने सल्फाइड के साथ दोबारा रिएक्शन करवा दी, हमें करवानी भी नहीं है लेकिन वो कैसा है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, उसके ऑक्साइड रिएक्शन मिक्सचर में वहाँ पे ही है, सल्फाइड तो हमने ऑलरेडी ओर में लिया ही है, तो उसी के साथ रिएक्ट करके वो क्या दे देगा हमें, फ्री मेटल। सही है, मतलब कि यहाँ पे हमें मेटल मिल रही है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हमने ऐड नहीं किया, खुद से मर्क्यूरी सल्फाइड मर्क्यूरी ऑक्साइड में से वो उसे रिड्यूस कर रहा है, उसी वजह से उसे बोल सकते हैं हम सेल्फ रिडक्शन। तो ये क्या हो गया, सेल्फ रिडक्शन हो गया, और बाय सेल्फ रिडक्शन भी हम कुछ मेटल्स को फ्री मेटल के फॉर्म में गेन कर सकते हैं बाय दिस इट्स ओर्स, राइट। वैसे ही लेड सल्फाइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या फॉर्म करेगा, लेड ऑक्साइड, और वही लेड ऑक्साइड फिर से लेड सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके लेड फॉर्म कर देगा। सही है, वैसे ही क्यूप्रिक सल्फाइड क्यूप्रिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, और वही क्यूप्रिक ऑक्साइड फिर से क्यूप्रिक सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर फॉर्म कर देगा। सही, तो ये हो गई हमारी सेल्फ रिडक्शन। सही है, बाय दिस we can also gain free or crude metal from their concentrate ore. Okay, and last one is electrolytic reduction, right? In electrolytic reaction, highly reactive metals are reduced from their corresponding cation by electrolytic reduction, right? जो highly reactive metals है वो किसी और reducing agent के थ्रू reduce नहीं होंगी, अगर हमें उसको reduce करवाना है तो we have to use that electrolytic reduction. Okay, the metal like aluminum, sodium, magnesium, calcium and potassium are highly reactive metals. So if we want to reduce their metal oxide, then we have to use that electrolytic reduction. In this reduction we can take molten oxide or halides of that reactive metals, and then we have to pass electricity, and then we will get the free metal at the cathode.
See the reaction. This metal cannot be reduced with the carbon because at the high temperature they form the carbides with the carbon. Right, जैसे कि हमने बात की ये बहुत हाईली रिएक्टिव है, तो दूसरी मेटल्स या दूसरे एलिमेंट के थ्रू वो रिड्यूस नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया तो वो खुद तो उसी का रिडक्शन कर देगा. सही है, उसी वजह से हम उसका रिडक्शन किसी और एलिमेंट के थ्रू नहीं कर सकते और हमें उसका रिडक्शन करना होगा बाय द इलेक्ट्रोलिसिस. सही है, उसमें क्या होगा, तो अगर हमने ले लिया NaCl तो वो कन्वर्ट हो जाएगा Na+Cl-. हमें क्या करना है, तो जो ये हमारी मेटल्स है मोर रिएक्टिव मेटल्स, सही है, कौन सी मोर रिएक्टिव मेटल, तो एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम, उसका क्या लेना है हमें, ऑक्साइड और हैलाइड, वो भी कैसे फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में, या फिर उसका सॉल्यूशन ले लेना है. फिर उसमें से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, वो NaCl सपोज ले लिया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा Na+ और Cl- में. यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कैथोड है वहाँ पे क्या होगा, तो जो Na+ है वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, और एज अ सोडियम मेटल वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा. सही है, वही एक इलेक्ट्रॉन वो कहाँ से लेता है, तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन किसका, क्लोरीन का, तो जो Cl- है वो Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. मीन्स के एनोड पे Cl2 गैस लिबरेट होगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, वही एक इलेक्ट्रॉन ये सोडियम गेन कर लेगा और क्या फॉर्म कर देगा, सोडियम मेटल. मीन्स बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस वी कैन कन्वर्ट दैट रिएक्टिव मेटल हैलाइड और ऑक्साइड इनटू फ्री मेटल. राइट, तो ये हो गया हमारा रिडक्शन. एल्यूमिनियम इज ऑल्सो ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ Al2O3 एल्यूमिना. सही है, Al2O3 को क्या बोलते हैं, एल्यूमिना. अगर एल्यूमिना का हमने रिडक्शन करवाया बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट Na3Al(F3), तो हमें एल्यूमिनियम गेन हो सकता है. हम जो एल्यूमिनियम, तो इसी तरह हम जो हमारी ओर थी उसे कॉन्सेंट्रेट किया लास्ट लेक्चर में. इस लेक्चर में हमने उस कॉन्सेंट्रेट ओर को पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, फिर उस मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करके फ्री मेटल गेन की. अब ये जो फ्री मेटल है वो कैसी है, क्रूड मेटल है, अभी भी इम्प्योर मेटल है. उससे अब प्योर फॉर्म में कैसे लाना है, क्योंकि हम जो यूज़ करते हैं वो तो क्या करते हैं, प्योर मेटल यूज़ करते हैं. तो उसके लिए जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल है, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, तो इस लेक्चर में अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो, कुछ ना समझ में आए, तो मुझे कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हो. ओके, थैंक यू.